जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So this is about the analytical solution for multivariate regression. तो हमने क्लास में ऑलरेडी कॉस्ट फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन किया था मल्टीवेरिएट रिग्रेशन के लिए, या फॉर दैट पर्पस मल्टीपल रिग्रेशन के लिए जे एम ऑफ थीटा. So this is primarily for m different examples, or h theta xi minus yi whole square. So this is the cost function. अच्छा, अब हमने इसकी वेक्टराइजेशन की सी, तो वेयर वी सेट कि जी अच्छा y इन द वेक्टराइज्ड फॉर्म जो है ना, दैट बिकम्स a vector of this form which is m by 1. तो ये वेक्टर होगा. उसके बाद h थीटा x जो है that is represented by x theta, जहाँ पे x जो है that can be represented by a matrix of this sort. This is example number 1. n different variables, first example. Similarly we have the second example now, and so on. अगेन n डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास आएंगी, और अगर इसको हम कंटिन्यू करते हैं टिल द mth एग्ज़ाम्पल, जो कि आखिरी एग्ज़ाम्पल है, विच वुड बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म up till x n m. So this matrix is primarily of size m into n plus 1, और ये मल्टीप्लाई हो रही है थीटा वेक्टर के साथ, विच इज़ थीटा नॉट, theta 1, theta 2 up till n thetas that you have got, और इसका साइज जो होगा वो n plus 1 times 1 है. So this is the cost, the expression that you have. So हमारे पास ideal situation के अंदर m, which is the desired output, that should be equal to h theta x. अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करें तो j would also be a vector that will actually be having, और उस वेक्टर की जो फॉर्म है that is represented as follows. So ये जो expression है, this expression that we have written here, this expression in the vector form जो है वो हम represent कर सकते हैं in the following way. So vector form के अंदर j theta would primarily be 1 over 2m times x theta minus y transpose x theta minus y. So x theta minus y is a vector. तो ये vector product है, which is the transpose of this vector multiplies with itself, and that gives you the sum squared form, जो कि instantaneous form में representation है. So this is the vector form of your cost function, right? तो अब so vector form of this cost function, so let's just try to resolve this issue. So now what we'll actually be doing क्योंकि हम analytical solution की बात कर रहे हैं, so in analytical solution we'll solve this expression for theta, but the derivative of this expression. So what we'll do is that we'll take the partial derivative of this expression with respect to theta, put it equal to 0, and solve it for theta, and this is what we're gonna do. So first of all we'll expand this expression जो कि हमारे पास यहाँ पे expression है, और फिर इसका हम derivative लेंगे with respect to theta, and then we'll primarily put it equal to 0 and solve it for theta. Okay,
सो लेट्स जस्ट एक्सपैंड दिस एक्सप्रेशन। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, लेट्स जस्ट टेक द ट्रांसपोज हेयर और इसको हम इनसाइड द ब्रैकेट्स लेके जाते हैं। सो व्हेन वील टेक ट्रांसपोज इनसाइड द ब्रैकेट, दिस विल बिकम तो अब इस एक्सप्रेशन को, लेट्स टेक दिस एक्सप्रेशन दैट वी हैव गॉट हेयर, इसमें ट्रांसपोज को वील टेक इट इनसाइड द ब्रैकेट। तो अगर ट्रांसपोज को इनसाइड द ब्रैकेट लेके जाएं तो दिस वुड बिकम as this. So this would be x theta transpose minus y transpose, and this whole expression multiplies with x theta minus y. Okay. So now what we'll do is कि अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. So we'll take this term, multiply it with this, take this term, multiply it with this. Similarly हम दूसरी साइड पे भी ऐसे करेंगे and we'll multiply the two inside the brackets. Okay, तो अब हमारे पास j of theta जो है ना, after multiplication this is what we'll be getting. So 1 over 2m वैसे ही आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स थीटा ट्रांसपोज टाइम्स एक्स थीटा माइनस वील हैव एक्स थीटा ट्रांसपोज वाई माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स थीटा प्लस वाई ट्रांसपोज वाई. सो दिस इज़ व्हाट we'll actually be having in our expansion form. अच्छा, अब इसके अंदर द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ दैट लेट्स एनालाइज दिस टर्म. तो ये सेकंड टर्म जो हमारे पास आ रही है, व्हाट इज़ दिस सेकंड टर्म रिप्रेजेंटिंग? दिस सेकंड टर्म इज़ प्राइमरीली अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. अब स्केलर क्वांटिटी क्या होगी जिसकी डायमेंशन हमारे पास 1 आती है. तो लेट्स जस्ट सी कि इसकी डायमेंशन हमारे पास 1 आती है या नहीं आती. तो लेट्स एनालाइज दिस सेकंड टर्म ओनली. सो सेकंड टर्म को एनालाइज कर रहे हैं. तो दिस इज़ एक्स थीटा ट्रांसपोज टाइम्स वाई. तो इसकी डायमेंशंस चेक करें. तो व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ एम? एम की एक्स की डायमेंशन जो है दैट इज़ प्राइमरीली एन एम टाइम्स n plus 1 matrix multiply with theta which is n plus 1 times 1. और इसका एक्चुअली हमने ये ट्रांसपोज है और मल्टीप्लाई हो रहा है विद m इंटू 1 विच इज़ y. तो ये डायमेंशन x की है, ये डायमेंशन थीटा की है और ये डायमेंशन हमारे पास y की है. तो इस सारे का ट्रांसपोज भी लेना है. तो इनसाइड इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस कम्स आउट टू बी m times 1 transpose times m times 1. Or if we take the transpose, this becomes 1 into m into 1, and this is primarily 1. So ये हमारे पास डायमेंशन 1 आ जाती है सेकंड टर्म की. तो सेकंड टर्म इज़ एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी. तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको अगर होल ट्रांसपोज भी ले लें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स कि हम एक्चुअली एक्स थीटा होल ट्रांसपोज वाई का कंप्लीट ट्रांसपोज भी अगर ले लें, उसकी डायमेंशन क्योंकि 1 है, इट विल रिमेन अ स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी में ट्रांसपोज लें या ना लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता. यू विल एंड अप हैविंग द सेम. तो इस टर्म को अगर हम ये करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा? आई जस्ट शो यू इन अ वाइल कि इसका हमारे पास एडवांटेज क्या है. लेकिन इसका हम ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो ट्रांसपोज लेके अगर मैं ट्रांसपोज को इसको लेट से एक्सपेंड करता हूँ, लेट से ट्रांसपोज को इनसाइड लेके जाता हूँ, तो दिस बिकम्स वाई ट्रांसपोज इनटू एक्स थीटा. सो दिस इज़ व्हाट दिस टर्म वुड लुक लाइक. तो मैं ये जो सेकंड टर्म है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ वाई ट्रांसपोज एक्स थीटा के साथ. तो इफ़ आई रिप्लेस इट विद वाई ट्रांसपोज एक्स थीटा तो मेरे पास जे की जो वैल्यू है, जे की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2m. ये वैल्यू आएगी. पहली टर्म मैंने वैसी लिख दी जो कि एक्स थीटा ट्रांसपोज इंटू एक्स थीटा है. सेकंड टर्म जो है वो मैंने रिप्लेस कर दी इसके साथ और y ट्रांसपोज एक्स थीटा पहले से भी मौजूद है, एंड दैट इज़ व्हाट आई विल बी गेटिंग, एंड देन आई विल एक्चुअली बी हैविंग y ट्रांसपोज y.
तो ये हमारे पास y ट्रांसपोज y आ गया। अब आप ये देखें कि सेकंड टर्म और द थर्ड टर्म आर एग्जैक्टली द सेम, सो आई कैन एक्चुअली ऐड दोज टू टर्म्स टुगेदर, और मेरे पास जो इसकी फाइनल फॉर्म बनती है वो ये बनती है 2y(x theta minus y transpose y). सो दिस इज़ व्हाट आई विल एक्चुअली बी गेटिंग। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि इस टर्म को भी जो है ना, आई विल एक्चुअली टेक द ट्रांसपोज इनसाइड ऑफ दिस। तो इस टर्म को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ थीटा ट्रांसपोज एक्स और थीटा। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द टर्म, दिस इज़ रिप्लेस्ड बाय दिस पार्ट ऑफ द टर्म। ठीक है, तो ट्रांसपोज को इनसाइड ले गया, तो दिस इज़ व्हाट आई विल एक्चुअली गेट। यू नीड टू नो सम लीनियर अलजेब्रा इन ऑर्डर टू डू दिस, लेकिन चलें, फॉर दोज हु वांट्स टू फॉलो द डेरिवेशन, उनके लिए ये यूज़फुल होगी। सो दिस इज़ व्हाट आई विल एक्चुअली बी गेटिंग। ठीक है, अब मेरे पास ये टर्म आ गई। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ कि मैंने थीटा के लिए इसे सॉल्व करना है, तो आई विल टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस, सॉरी, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड आई विल पुट इट इक्वल टू ज़ीरो। This is what I'll be doing. Okay, I'll write it again, partial derivative of this with respect to theta, and put it equal to 0. Let's just do this with this term, or with this expression. Okay, so let me just do this for you. और इसमें अगेन कुछ हमें लीनियर अलजेब्रा की जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो I'll just try to explain them. अच्छा, partial derivative of theta with respect to theta, this would give me partial derivative of the expression जो कि मैंने पहले ऊपर लिखी हुई है, which is 2m x transpose theta transpose x into theta minus 2y transpose into x theta minus y transpose y। ठीक है, एंड आई विल देन पुट इट इक्वल टू ज़ीरो। इसको मैंने सॉल्व करना है। तो अब अगेन लेट्स टेक इट टर्म बाय टर्म। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा ट्रांसपोज करना है, तो ये फाइनल टर्म जो है ना, ये हमारे पास इसमें कोई थीटा इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको जब मैं डेरिवेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आई विल एक्चुअली गेट ज़ीरो। सो आई जस्ट पुट ज़ीरो देयर, आई मीन हर टर्म को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो 1/2m पार्शियल डेरिवेटिव को मैं अंदर ले जाता हूँ। So this would become partial derivative with respect to theta of term, theta transpose x theta. So इसका partial derivative minus 2 partial derivative of theta with respect to theta of y transpose x theta, और minus partial derivative of theta for the expression y transpose y। ठीक है, तो ये y transpose y आ गया। अब इसमें जो मैं बात कर रहा था कि ये जो टर्म है इसमें थीटा इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस विल बी ज़ीरो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, तो आई कैन रिप्लेस दैट, और मेरे पास जो टर्म बचेगी दैट विल बी 1/2m, और दो ही टर्म्स बचेंगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा। फर्स्ट एक्सप्रेशन वुड बी थीटा ट्रांसपोज एक्स थीटा, और सेकंड टर्म आ जाएगी -2 partial derivative of this term, which is y transpose x theta. So this is what you'll actually be getting. ठीक है, अब दोनों टर्म्स को let's take it one by one. अच्छा, पहले हम again we can take this and take the partial derivative. तो पहले इसका partial derivative ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका partial derivative जब हम लेते हैं, so this comes out to be only this term now. तो -2 को अभी रहने देता हूँ, तो सिर्फ अंदर वाली टर्म को पार्शियल डेरिवेटिव लेके इसमें इंसर्ट कर देंगे, तो पार्शियल थीटा ओवर थीटा ऑफ y ट्रांसपोज x थीटा। तो लेट्स टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस। अच्छा, अब द आंसर फॉर दिस कम्स आउट टू बी this y transpose x
होल ट्रांसपोज। तो ये इसकी रिजल्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास आती है। ठीक है, रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आती है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन आई कैसे? आई मीन ये इसका जो है वो हम एक लीनियर अलजेब्रा के अंदर वी हैव दिस एक्सप्रेशन के अगर हमारे पास कोई टर्म है वाई ट्रांसपोज, दिस इज़ दिस टर्म। अगर मैं ये सिर्फ इस टर्म को लेता हूँ तो दिस इज़ व्हाट दिस टर्म इज़ रिप्रेजेंटिंग। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेता हूँ तो द आंसर एक्चुअली कम्स आउट टू बी वाई ट्रांसपोज टी। ये वाला जो पार्ट है इसका ट्रांसपोज आएगा। दिस इज़ यूजिंग एन दिस इज़ यूजिंग अ रूल विच सेज कि इफ़ यू हैव ए एक्स और x इज़ अ मैट्रिक्स और a इज़ ऑल्सो अ मैट्रिक्स, और अगर इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँ तो आंसर जो है वो हमेशा a ट्रांसपोज के बराबर आता है। नाउ दिस इज़ समथिंग विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ रूल दैट इज़ यूज्ड इन लीनियर अलजेब्रा। तो यहाँ पे a जो है ना एक्चुअली y ट्रांसपोज x है। ठीक है, तो सो दिस इज़ द आइडेंटिटी जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई की है, जिसकी वजह से हमें ये रिज़ल्ट जो है ना वो एक्चुअली मिला है। तो फॉलोइंग दिस आइडेंटिटी हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है दिस इज़ व्हाट वी गेट as final. So if I replace this here in the expression, so this expression जो कि j की expression है that comes out to be 1/2m, and then I have the partial derivative with respect to theta of the term theta transpose x theta minus 2 y transpose x whole transpose. So this is what I get. ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। मैंने इसके पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिए। अब इस ट्रांसपोज को अगर मैं इस ट्रांसपोज को ब्रैकेट्स के अंदर लेके जाता हूँ तो आई विल एक्चुअली बी गेटिंग 1/2m पार्शियल और पार्शियल थीटा ट्रांसपोज एक्स थीटा माइनस 2x ट्रांसपोज वाई। अच्छा, ये मैंने ये जो ब्रैकेट्स के बाय ट्रांसपोज था इसको इसका ट्रांसपोज ले लिया और फिर इसका ट्रांसपोज ले लिया। और जब ट्रांसपोज लेते हैं तो पोजीशन इसकी स्विच हो जाती है। अगर दो उसमें मैट्रिक्स या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो तो ये पोजीशन उनकी स्विच होगी। एक्स का ट्रांसपोज पहले आ गया, वाई ट्रांसपोज गिव्स यू वाई, तो यहाँ पे वाई हमारे पास वैल्यू आ जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टर्म। नाउ अब हमारे पास जो एक टर्म बच गई जिसका पार्शियल डेरिवेटिव अभी हमने नहीं लिया वो ये वाली टर्म है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म नाउ, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, so let's just talk about this. I'll just take the partial derivative of the first term, partial derivative of theta transpose x theta। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो देखें इसमें थीटा ट्रांसपोज पहले आ रहा है और थीटा आ रहा है। तो पहले मैं ये एज्यूम करूँगा कि ये कांस्टेंट है और विद रिस्पेक्ट टू थीटा ट्रांसपोज इसकी पार्शियल डेरिवेटिव आएगी, और फिर ये जो अजम्पशन होगी वो ये है कि ये फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है और ये आखिरी वाले जो थीटा है उसके रिस्पेक्ट में इसका ट्रांसपोज लूँगा। सो दिस वुड प्राइमरली बी डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स। तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा with respect to theta transpose x थीटा मेरे पास आ गया, प्लस मेरे पास इसी का जो है ना इस केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा ले, और अगले वाले केस के अंदर मैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड थीटा लूँगा। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा। तो इस केस के अंदर आई विल अज्यूम कि ये कांस्टेंट है और इस केस के अंदर आई विल अज्यूम कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये दो दफ़ा थीटा आ रहा है। तो एक दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट थीटा विच इज़ दिस वन, और दूसरी दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा विच इज़ द सेकेंड वन। ठीक है, अब दोनों टर्म्स के पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लेंगे। अच्छा, इसमें एक रूल आपने जहन में रखना है। अगर ये जो लास्ट टर्म है इसमें मैं ये देखूं कि दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी सम फैक्टर विच इज़ मल्टीप्लाइंग विद दिस वेक्टर विच इज़ एक्स,
तो दिस इज़ सिमिलर टू द प्रीवियस जो फ्लैशबैक मैंने आपको दिखाया था। दिस इज़ सम मैट्रिक्स या वेक्टर जो कि एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने जो किया था एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी। आंसर क्या आया था? ट्रांसपोज आ गया था, ए ट्रांसपोज आंसर आ गया था। तो इस केस के अंदर अगर मैं इसको ए एज्यूम कर लूँ तो इस सारे का ट्रांसपोज अगर मैं ले लूँ तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूँ तो इस सारी टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना वो आंसर आएगा। तो इस टर्म की पार्शियल डेरिवेटिव के केस के अंदर मेरे पास आंसर जो है वो इस होल इक्वेशन का ट्रांसपोज आ जाएगा, विच इज़ गुड इनफ। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टर्म रह गई। तो फर्स्ट टर्म के अंदर जो मेरे पास आइडेंटिटी है या जो मेरे पास एक रूल बनता है वो मैं आपको पहले रूल बता देता हूँ। तो आई राइट इट इन दिस बॉक्स, वो रूल। और वो रूल ये है कि अगर मेरे पास राइट राइट तो और सॉरी जी, तो जो रूल है वो ये है कि अगर इफ़ आई टेक अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सम मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल लेट मी कॉल दिस मैट्रिक्स जी, और अगर मेरे पास ऊपर जी ट्रांसपोज ए टाइप एक्सप्रेशन कोई आ जाती है, सो द आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस वुड ऑलवेज बी ए। ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट आई हैव हेयर। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा ट्रांसफर करना है, यहाँ पे थीटा ट्रांसपोज है मेरे पास, तो मैं इसको जी अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, इसको जी अज्यूम कर सकता हूँ, तो यही मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर मेरे पास आएगा आफ्टर अप्लाइंग दिस रूल, इस एक्सप्रेशन का आंसर मेरे पास आ जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स थीटा। तो दिस इज़ व्हाट आई विल एक्चुअली बी गेटिंग। तो जस्ट टू रिकैप, यहाँ पे मैंने ये वाला रूल लगाया जिसमें अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स और वेक्टर लिया है जिसका ट्रांसपोज आपके पास है और इस तरह की फॉर्म है जो कि यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे बन रही है, तो फिर ए इज़ द आंसर। सो द रिमेनिंग पार्ट इज़ दिस, सो दिस विल बी द आंसर इन दिस केस। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगी है, या सॉरी आइडेंटिटी कह रहा हूँ, जो रूल यहाँ पे लगेगा वो ये लगेगा कि अगर मेरे पास अगर ये आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल पार्शल ए और मेरे पास ए जी हो तो आंसर ए ट्रांसपोज आएगा। दिस इज़ व्हाट द अदर है। तो ये वाला जो लॉ है ये मैंने सेकंड टर्म पे लगाया है और ये वाला जो लॉ है ये मैंने फर्स्ट टर्म के अंदर लगाया है, और आंसर फर्स्ट टर्म का ये आता है, सेकंड टर्म का ये आता है। सो माय फाइनल जे एक्सप्रेशन जो मेरे पास बनती है वो मेरे पास कुछ इस तरह की फाइनल एक्सप्रेशन बनेगी 1/2m। अगर ये मैं सारी वैल्यूज़ इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, एक्स ट्रांसपोज एक्स थीटा प्लस एक्स ट्रांसपोज एक्स जी, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स राइट, लेट मी जस्ट पुट इट देयर। सेकंड टर्म के अंदर सॉरी यहाँ पे लेट मी जस्ट रिमूव दिस। सो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी, तो दिस वुड प्राइमरीली बी थीटा ट्रांसपोज एक्स राइट, होल ट्रांसपोज। ओके, और प्रीवियस टर्म थी मेरे पास 2xy और this will be the case, sorry ये partial derivative with respect to theta and this will be equal to 0. अच्छा, if I just expand this further, this will come out to be x transpose x theta, और अगर इस ट्रांसपोज को मैं if I take it inside the bracket और हर टर्म को individually ट्रांसपोज कर दूँ तो this will turn out to be x transpose x whole transpose right into theta। थीटा ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज लूँगा तो थीटा मेरे पास बचेगा और इन दोनों की जो पोजीशन है वो स्विच कर जाएगी। दिस इज़ व्हाट द सेकंड टर्म वुड बी, और लास्ट टर्म मेरे पास कुछ इस तरह से बचती है विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली बी गेटिंग। अच्छा, अब इसको दोबारा से मैं
if I just take this transpose inside, अच्छा ये equal to 0 है, तो let me just rewrite this, इस expression को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, plus x transpose x theta minus 2xy transpose equal to 0। तो मैंने इस ट्रांसपोज को जो है ना आई टेकन इनसाइड, और x ट्रांसपोज x जो है और उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो दिस शुड बिकम x, और पोजीशन इसकी फर्स्ट थी अब सेकंड हो जाएगी आफ्टर ओपनिंग द ट्रांसपोजिशन, राइट। एंड फ्रॉम हेयर आई कैन एक्चुअली सॉल्व दिस, तो इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, एंड 1/2m, this would be 2x transpose x theta minus 2x transpose y equals to 0. And finally, this term will be put equal to 0. So you will have x transpose x theta minus 2x transpose y, and this goes to 0. 2m जो है वो constant है, और यहाँ पे I can actually remove this. So once I have got this expression, so now I can actually solve it for theta. So this would be x transpose x theta equals to 2x transpose y, और थीटा की वैल्यू 2 कैंसल्स आउट विद 2, और इस सारी टर्म का मैं इन्वर्स लेके आई कैन एक्चुअली टेक इट टू द अदर साइड, सो दिस वुड बी x इनवर्स इनटू x ट्रांसपोज y। सो दिस इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ थीटा। सो अब मैं, अगर मेरे पास x जो कि फीचर वेक्टर फीचर मैट्रिक्स है, अगर वो मुझे पता है और मुझे डिज़ायर्ड आउटपुट का पता है, सो आई कैन सिंपली स्विच द वैल्यूज़ इन दिस एक्सप्रेशन, और यहाँ से मैं थीटा की डायरेक्टली वैल्यूज़ जो हैं वो मैं निकाल सकता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट द एनालिटिकल सॉल्यूशन इज़ फॉर मल्टीवेरिएट रिग्रेशन।